So yes, very good evening class 12 students, and so today we'll be discussing about सबसे पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगी इस वेबिनार में, we'll be discussing about the marking scheme, right? कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, right? And this analysis is as per the sample paper of term 2, right? So Rajesh, staffing say we have two questions 2 marks each ke, and one question 5 marks each ka. So now I'll be telling you specifically के staffing की जो इन्होंने allotment की है, that is 2 and that is 5. So Raji, एक 2 marker का question जो staffing से है, that is related to your internal and external sources of recruitment. Another question of 2 marker is related to your workload and workforce analysis, which comes under staffing का process estimating manpower requirement में. And ये जो 5 marks का question है, that is from Rajesh selection process. In total आपका staffing कितने marks का आ रहा है? 9 marks का. See, you have to strategize. आपने सबसे पहले कौन से चैप्टर को रजे प्रेफरेंस देनी है, ठीक है? मतलब if I say staffing is for 9 marks, सबसे पहले staffing को स्टडी करो, ठीक है? Why हमने staffing को स्टडी करना है? Because it is something which is very important. It is for 9 marks. इसकी weightage ज्यादा है as and when compared to other chapters, right? So when we talk about directing, so directing में राजे 3 marks के 2 questions है, right? राजे एक जो 3 marker का question है, that is based on your motivational incentives, and those motivational incentives can be Himanshi financial as well as non-financial. And another 3 marker question में आपको राजे क्या आएगी? Choice आएगी, ठीक है? It could be from the importance of directing, or it could be from styles of leadership, right? Directing में आपको राजेश सान्या, you have 3 marks के 2 questions, which makes directing is for राजेश 6 marks, जिसमें 3 marks का the question is coming from the incentives. Incentives could be financial and non-financial, Devansh. And apart from incentives, we have leadership styles, ठीक है? And जो another 3 marker का question आ रहा है directing से राजे, that will be in choice. So moving forward to controlling is for 5 marks in your board examination, जिसमें इसकी bifurcation है 2 plus 3. So 2 marks का controlling से हमें क्या आएगा? It will be related to your process. जो जैसे controlling के 5 steps हैं process में, कोई भी एक point आपसे पूछा जाएगा case study में, and you just have to answer it, right? And another question from controlling is for 3 marks, and that 3 marker question will be based on the importance of controlling. So जो controlling chapter है ना, उसमें main 2 ही चीजें important हैं, that is Rajay importance of controlling and that is process of controlling, right? Moving forward to financial management, जो बच्चों को बहुत ज्यादा difficult लगता है. In financial management, the weightage is 3 plus 5. एक 3 marker का question आएगा, एक 5 marker का question आएगा, which total makes in CR as 8 marks. And ये जो 3 marker का question है, that will be based on your fixed capital management or your working capital management or your financial planning. जो prediction है, जो आपका 3 marker का question आएगा financial management से, that will be based on fixed capital management or the working capital management or financial planning. Financial planning के chances थोड़े से कम है. And another 5 marker question जो financial management से आएगा, वो किस में आएगा? Choice में आएगा. And choice में options क्या होंगे? एक ऑप्शन ये हो सकता है आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स आ सकते हैं, और द अदर चॉइस कुड बी यू कैन गेट अ क्वेश्चन
on capital structure, and capital structure का question क्या आएगा, numericals आएंगे, right? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा उसमें रजे देयर विल बी अ चॉइस, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक आपको चॉइस आ सकती है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स पे, और कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, राइट? एंड ये जो मैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन की मेनली बात कर रही हूँ, बोर्ड विल मोस्टली give question 5 marker wala from financial decisions or dividend decisions, because uske factors zyada hai as and when compared to the investment decisions, right? या फिर बोर्ड ये भी कर सकता है 5 मार्कर में कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ चॉइस किसको दे सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग एंड उसकी इंपॉर्टेंस, राइट? So moving on to financial markets is for 2 plus 5, that which makes total 7 marks, right? So financial markets में जो 2 marks का question है, the ones that is coming from methods of flotation. Primary market के we have various methods of flotation, offer through prospectus, offer for sale, private placement, right issue, EIPOS. एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो भी मैंने मेथड्स बताए हैं ना आपको, सबसे ज्यादा आने के चांसेस किससे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस से, एंड ऑफर फॉर सेल से। जैस्मीन, आई वाज सेइंग जो फाइनेंशियल मार्केट्स आपका चैप्टर है उसका बाइफिगरेशन इज जैस्मीन 2 plus 5, राइट? एंड जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज मनी मार्केट एंड दैट इज कैपिटल मार्केट. सो जो कैपिटल मार्केट है दैट इज फर्दर बाइफिगरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट. So primary market is also called as new issue market. Why it is called as a new issue market? Because here the securities are being issued for the first time in the market. So under primary market we have various methods जिसके थ्रू हम पैसे को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. तो उन मेथड्स में से जो आपका टर्म 2 का सैंपल पेपर है उसमें ऑफर थ्रू सेल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? सो मैं ये बोल रही थी कि जो प्राइमरी मार्केट के मेथड्स हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, we have private placement, we have right issue, we have EIPOS. केस स्टडी पेपर में मोस्टली किससे आएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट से, क्योंकि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट, either from offer through sale or either from offer through prospectus. ये 3 मेथड जरूरी है. This prediction is on the basis of जो previous year board papers हुए, उसके बेसिस पे मैं केस स्टडीज के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन से straight away you will get Divansh a 5 marker question. कंज्यूमर प्रोटेक्शन से straight away 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, एंड वो किस में आएगा, चॉइस में. एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है ही कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, reliefs available to a given consumer, a deceased consumer, right? Sorry, thank you Ara. Right, financial markets का I left one point. ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसका 5 मार्कर क्वेश्चन रजे विल कम फ्रॉम सेबी, राइट? आपको सेबी के फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है. सेबी के फंक्शंस आर प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट. 5 marker question can come from SEBI, or it can come from secondary functions. Secondary market के जो functions हैं, right? Or the question can come from trading and settlement procedure. Trading and settlement procedure आने के इस बार chances थोड़े से कम है. Mostly question RF can come from your SEBI के functions and secondary market के functions, right? And when we talk about consumer protection से सिर्फ एक 5 marker question आएगा, and 5 marker question can come in choice. मैंने लिखा भी हुआ it will come in choice. And consumer protection में
important topics क्या है? Rights of a consumer, reliefs which are available to a deceased consumer, responsibilities of a consumer, and your three-tier redressal agency. What is the three-tier redressal agency? District forum, state commission, and the national commission. Uska mechanism. But there are mostly chances कि आपको responsibilities और rights से ही question आए इस बार, because जैसे 2019 में consumer protection amend हुआ, so I think redressal agencies के आने के chances इस साल कम है. So now as I have discussed the sample paper का layout कि कौन सा chapter कितने marks का आ रहा है, so अगर मैं बोलूं तुम लोगों को एक सजेशन दूं, यू शुड प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्टाफिंग पहले नंबर पे, राइट. आउट ऑफ स्टाफिंग में जो बाइफिगरेशन है दैट इज 2 + 2 + 5. 2 से either the question can come from the internal sources and external sources of recruitment. Another 2 से उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस से, which was from staffing का प्रोसेस. And जो 5 marker का question था staffing से, that was from selection process. So according to me, सबसे पहले you should start with staffing, and then you should go for financial management. Third, you should study financial markets. Fourth, directing. Fifth, controlling. And sixth, consumer protection. You can do controlling and consumer protection in one day, as बहुत छोटे chapters हैं, इतना ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत जनरलाइज्ड इजी चैप्टर्स हैं. सबसे पहले प्रेफरेंस तो स्टाफिंग को दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स को दो, एंड देन यू गो टू डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बिकॉज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसे कुछ 3 चैप्टर्स हैं विच आर इजी टू अंडरस्टैंड. डायरेक्टिंग अगर मैं बोल रही हूँ दैट इज फॉर 6 मार्क्स, थोड़ा जनरल लाइफ से रिलेटेड है, तो उसको करना इज समथिंग विच इज इजी. So इसके बाद I'll be telling you some important topics एक chapter से, right? And after this session I'll share with you this PDF, so this thing remains with you. When we discuss about the important topics of each and every chapter, staffing में जो important topic सबसे पहले आता है, that is from the importance of staffing, right? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से कुछ साल पहले तक तो काफी क्वेश्चन आता था नव्या, राइट. बट अब थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिए, कम कर दिए लास्ट 1 साल से. स्टाफिंग के प्रोसेस से साल क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, राइट. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टाफिंग इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. Sources of recruitment are internal and external. Internal may we have Harman transfers and promotions, and external may we mainly talk about जो external में important sources है, वो sources है campus recruitment जिससे question आता है, placement agencies, management consultants, and then we have advertisement. These are some important external sources of recruitment जिससे case study आ सकती है. I can repeat the main important sources, external sources जिससे case study आ सकती है, that is placement agencies, management consultants, campus recruitment, your casual callers, and your advertisement, right? And staffing से जो next important topic है, that is selection process. And selection process से 5 marker definitely question आना ही आना है. I can write it Navya Sharma selection process से इस बार question board में 5 marks का आएगा ही आएगा, right? And especially selection process में जितने भी वो Harman and Sabya test है, we have aptitude test, personality test, intelligence test, trait test, उसको तो पक्का से करके जाना, definitely करके जाना. case study में 110% यूज होगा, right? So इस बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से चांसेस आने के थोड़े से कम है हरमन पेपर में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, राइट.
Moving on to directing, when we talk about directing के important topics क्या है? सबसे पहले you can study the features and the importance of directing, right? ज्यादा emphasis importance of directing में देना ये आ सकता है question choice में, right? Then you can also study Maslow's theory. Maslow's theory is something which is very basic, that is basic physiological needs and safety security needs, affiliation needs, self-actualization needs, belonging needs, right? Motivation incentives, again, it is a very important, and motivation incentives are of two types, that is financial and non-financial. ठीक है, एंड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का अगर केस स्टडी आती है हरमन, इट विल बी अ कंबाइंड केस स्टडी, मतलब केस स्टडी में कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी लग सकते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी लग सकते हैं. जो डायरेक्टिंग में मुझे लगता है इस बार चांसेस आने के ज्यादा हैं, that is mainly from the importance of directing and about the motivation incentives, that is financial and non-financial. And of course one of the most important topic जो board का है, that is leadership styles. Leadership styles के आपको diagrams भी पता होने चाहिए. I know that is not there in your NCERT, but that is there in your reference books. And we have three styles of leadership, that is autocratic leadership, democratic leadership and laissez-faire leadership style. So directing में सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बाकी टॉपिक्स को सिग्निफिकेंस नहीं देना है, यू शुड रीड देम थॉरली, बट ये जो टॉपिक्स कुछ हैं इनको तो आपने बाय हार्ट लर्न करना है. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हो गया, मोटिवेशन के इंसेंटिव्स हो गए, लीडरशिप स्टाइल्स हो गए, एंड कम्युनिकेशन से देयर आर लेस चांसेस कि उससे पेपर में आए. Insia, yes. मैं आपको लीडरशिप स्टाइल्स के डायग्राम्स भेज दूंगी, एंड डायग्राम्स जो आरव आपके करिकुलम में नहीं है, दैट इज फ्रॉम कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कुछ डायग्राम्स नेटवर्क्स हैं, दैट इज नॉट देयर इन योर करिकुलम. एंड कम्युनिकेशन में से आने के जो चांसेस हैं, दैट विल बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. ठीक है, मतलब दो आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट्स ड्रॉबैक्स to each, right? And then when we talk about controlling में जो main important चीजें हैं, that is controlling की importance and controlling का process. जैसे प्रोसेस सैंपल पेपर में 2 मार्क्स का आया हुआ है, एंड इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन केस स्टडी आई हुई है, इनफैक्ट दैट इज फॉर 3 मार्क्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज, वी हैव 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, दैट इज इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, राइट? वी हैव इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. So when we talk about financial management में जो prudent finance manager होता है सब्या, you know, he or she takes 3 major decisions, and वो 3 major decisions क्या होते हैं? Investing, financing and dividend. So investing, financing, dividend से dividend decision के factors से इस बार sample paper में case study आया हुआ है, and that is for 5 marks, right? And उसके साथ dividend decision के factors के साथ choice में there was a capital structure, and capital structure ka Rajay numerical, right? So capital structure ka numerical is something very easy. And when we talk about fixed capital management and working capital management, so out of fixed capital management and working capital management ka question tha term 2 के sample paper में, and that was something which was very straight away. That was a very generalized question के working capital जो decisions है उसके factors explain करो for 3 marks, right? So according to my analysis, financial management में जो चीजें important हैं, that is financial decisions,
इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, उसके फैक्टर्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल प्लीज सारे बच्चे अच्छे से करके जाना बिकॉज दैट विल कम फॉर 5 मार्क्स. एंड मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, जब मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करती हूँ श्योरली आरव, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट. एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो बोर्ड मतलब हर एक साल से उस पे क्वेश्चन डालता आ रहा है, दैट इज फ्रॉम कमर्शियल पेपर. एंड मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट से आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा एंड दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 मार्कर, राइट. And then we have secondary market functions, which is also called as stock exchange के functions. ये जो last 3 topics हैं, ये 5 marks के आ सकते हैं आपके term 2 के पेपर में. Stock exchange के functions हो गए, trading and settlement procedure हो गया, and SEBI functions. मोस्टली अगर बोर्ड ने क्वेश्चन देना है 5 मार्कर का, वो या तो सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस पूछेगा या वो सेबी के फंक्शंस पूछेगा. सेबी के फंक्शंस कैन कम फ्रॉम प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, रेगुलेटरी. जैसे 5 मार्क्स का रेगुलेटरी फंक्शंस पे क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल पेपर में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मेनली वी हैव राइट्स, वी हैव रिस्पांसिबिलिटीज, reliefs and redressal agency. And mainly हरमन जो क्वेश्चन आया हुआ है टर्म 2 के सैंपल पेपर में, that is from rights and responsibility. So these were some of the important topics and I am confident enough 90% जो पेपर होगा वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा. 90 भी क्यों, 95%. So I would just like to give you one suggestion to all the class 12 students. See, बिजनेस स्टडीज में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल हरमन मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन एनी 3 factors of वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अगर जैसे आपको क्वेश्चन आया राइट आरव, कोई भी 3 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, सो सभ्या आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर मैं आपकी जगह होती एंड मैंने जब अपना +2 का बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिया था, तो सबसे पहला स्टेप में क्या करती नव्या, आई वुड हैव डिफाइंड, सबसे पहले मैं डेफिनेशन देती कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है. सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? हाँ जी, जो आपको पैसा डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल कैसे कंप्यूट होती है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. फिर मैं क्या करती, फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मैं फ्लो चार्ट बनाती. अगर बोर्ड ने मेरे से पूछा है कि आपने 3 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, एंड बुक में आई से देयर आर 10 पॉइंट्स, देयर आर हरमन 12 पॉइंट्स. मैंने फ्लो चार्ट में सारे के सारे पॉइंटर्स जो हैं, चाहे वो 10 है चाहे वो 12 है, मैंने फ्लो चार्ट में वो सारे पॉइंट्स शो कर दिए, बिकॉज आई एम टेलिंग द टीचर that yes I know everything about this subject. and उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, मैंने नेचर ऑफ बिजनेस हेडिंग डाला, अंडरलाइन किया, और इसमें भी आंसर किसमें लिखा, पॉइंटर्स में. सभ्या, बिकॉज टीचर कहती है कि बहुत अच्छा टीचर पे एक इंप्रेशन पड़ता है जब एक बच्चा जो हेडर है उसके अंडर भी आंसर्स किस में लिख रहा है, सब पॉइंट्स में.
टीचर फील्स वेरी हैप्पी कि बच्चे की प्रेजेंटेशन कितनी सुंदर है। एंड बेसिकली क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैं बच्चों के पेपर चेक करती हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस है, एंड उसमें आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने एक लाइन लर्न की होती है, उस एक ही लाइन को ना पता नहीं लैंग्वेज को, इंग्लिश को मोल्ड करके लिखते रहते हैं। ऐसे नहीं करना है। इफ द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, आपने फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखा, उसको ब्यूटिफुली अंडरलाइन किया, बट नॉट विद एनी कलर्ड पेन, बट ओनली विद शार्पन पेंसिल, एंड उसके अंडर आपने सब पॉइंटर्स लिखे। नेचर ऑफ बिजनेस के अंडर आपने आंसर को सब पॉइंटर्स में लिखा, एंड उस सब पॉइंटर्स में भी कुछ आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, लाइंस को अंडरलाइन कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू टेल दैट टीचर, यस मेरे को तो बिजनेस स्टडीज की सारी नॉलेज है, तो क्यों नहीं आपको नंबर मिलेंगे, राइट। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इफ यू गेट एनी क्वेश्चन, जैसे अपार्ट फ्रॉम केस स्टडी, अगर कोई जनरलाइज क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जैसे एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैं क्या सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले डिफाइन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, देन एक्सप्लेन इट थ्रू अ फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट जैसे अभी मैंने स्क्वायर वाला फ्लो चार्ट बनाया, यू कैन यूज सर्कल, यू कैन यूज क्लाउड, एनीथिंग। आपने फ्लो चार्ट बनाया, जितने भी वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स थे आपने उसने फ्लो चार्ट में पोर आउट कर दिया, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी आपको लगता है, जो आपको फैक्टर्स आते हैं, इतने सारे फैक्टर्स में से आपने एक एक करके उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया। जैसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस था, एंड उस नेचर ऑफ बिजनेस में भी आपने आंसर किस में लिखा, सब पॉइंट्स में लिखा, पॉइंटर्स में लिखा। एंड जब आप इस आंसर को पॉइंटर्स में लिख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, की लाइंस है, उनको अंडरलाइन करो। सेम जैसे फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ, फर्स्ट पॉइंट के बाद आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, से स्केल ऑफ ऑपरेशंस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस लिखा, इसके अंडर भी आंसर आपने किस में लिखा, पॉइंटर्स में, एंड देन यू आर अंडरलाइनिंग ऑल द नेसेसरी कीवर्ड्स एंड द की लाइंस। अगर आप ऐसे अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन देते हो, जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो केस स्टडीज नहीं है, इन 3 मार्कर एंड 5 मार्कर, डेफिनेटली मतलब अगर कोई भी बच्चा मेरे सामने ऐसा ही आंसर अटेम्प्ट करे ना, उसको 3 आउट ऑफ 3 मैं दूंगी ही दूंगी। टीचर के पास कोई वो नहीं रह जाएगा कि इतना सुंदर बच्चे ने पेपर किया है, मैं उस बच्चे का आधा नंबर भी क्यों काटूं, राइट। एंड जब आप ये फ्लो चार्ट्स भी बना रहे हो, यूज अ पेंसिल एंड अ गुड बॉल पेन और जेल पेन, जिससे भी आप पेपर करोगे। डोंट यूज एनी कलर्ड पेन और ब्लैक पेन और एनी अदर थिंग, मतलब कोई भी ऐसे चांसेस मत लेना जिससे टीचर मार्क्स काटे और वो सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो। So I've discussed with you about the marking scheme, about what all topics are important for your term 2 board exam, and I have told you how you have to present the paper. ठीक है? Okay. So I would like to discuss one funda with you. जब भी आपको case problem आएगी नव्या, that is the entire passage, you don't have to read the case study first. कभी भी ना case study को पहले नहीं पढ़ना है। केस स्टडी के सब पार्ट्स पढ़ो, जो उसके सब पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट ए, पार्ट बी, राइट। बिकॉज जब आप पार्ट ए, पार्ट बी पढ़ोगे सभ्या, यू विल गेट टू नो कि वो पर्टिकुलर केस स्टडी किस चैप्टर से है, ठीक है। जैसे ए पार्ट में लिखा हुआ है, बताओ उस अबव केस स्टडी में कौन सा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव लग रहा है, तो आपको पता लग जाएगा यस दिस केस स्टडी बिलोंग्स टू डायरेक्टिंग। तो आप अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिर्फ डायरेक्टिंग रखोगे और बाकी 5 चैप्टर्स नहीं रखोगे दिमाग में। सो कभी भी जब केस स्टडी आती है, केस स्टडी का पहले पैसेज मत पढ़ो, हमेशा रीड दी सब पॉइंट्स and then go back to the case study and then underline the key words, the key lines, so that you are able to identify the answer. So these were some pointers from my side and I hope ये सारी चीजें आपको help out करें. And I wish you all the very best for the upcoming board examinations and you score well
marks and जो भी आपकी expectations है उसके according, हर एक बच्चे के number आए. And yes, if you have any further doubts, you can let me know. I would, love to help you guys out. And now I am open for discussions, right? So just give me a minute.